السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 44۔ بھری دوپہر تھی اور چل چلاتی گرمی۔ ریل گاڑی شور مچاتی کھٹ کھٹ کرتی لوہے کی پٹریوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ رحیم داد سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے میں بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ کئی اور مسافر بھی تھے۔ وقت گزارنے کے لیے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، کوئی اخبار، کوئی اونگ رہا تھا، کچھ ہنس بول رہے تھے۔ ایک مسافر اوپر کی نشست پر لیٹا اطمینان سے سو رہا تھا۔ اس نے چھت میں لگے ہوئے پنکھے کا رخ موڑ کر اپنی طرف کر لیا تھا۔ اس کا ایک پیر نشست سے باہر نکلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دراز قد ہے۔ رحیم داد گرمی اور تپش سے بیزار اور اکتایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ نشست پر جو مسافر بیٹھا تھا وہ اخبار کے مطالعے میں اس قدر غرق تھا کہ جب رحیم داد ڈبے میں داخل ہوا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تو اس نے صرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر اخبار پڑھنے میں محو ہو گیا۔ رحیم داد نے بھی اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ اخبار سے اسے کبھی دلچسپی نہ رہی۔ اس وقت بھی اس نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا، نہ خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالی نہ تصاویر پر۔ وہ کچھ دیر گم سم بیٹھا رہا، پھر گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آسمان پر بادلوں کے ہلکے ہلکے سرمئی لکے منڈلا رہے تھے۔ سورج ان کی اوٹ میں چھپ جاتا تو دور تک سائے پھیل جاتے۔ فضا دم بھر کے لیے سہانی ہو جاتی، مگر جب سورج دوبارہ نمودار ہوتا تو منظر اچانک بدل جاتا۔ دھوپ اتنی تیز اور چمکیلی ہوتی کہ آنکھوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ریل گاڑی سرپٹ دوڑتی رہی۔ وقت گزرتا رہا۔ سورج بادلوں سے آنکھ مچولی کھیلتا رہا۔ سائے گھٹتے بڑھتے رہے۔ ریل گاڑی کی رفتار سست پڑ گئی۔ پٹریاں بدلنے لگیں۔ ریل گاڑی ٹھہر گئی۔ سامنے اسٹیشن کی مختصر اور پرانی عمارت تھی۔ اسٹیشن کے عقب میں شرینہ کے ایک گھنے اور تن آور درخت کے نیچے دو تانگے کھڑے تھے۔ سامنے کنکر کی بنی ہوئی سڑک تھی، جس پر دوڑتا ہوا ایک تانگا تیزی سے اسٹیشن کی عمارت کی سمت بڑھ رہا تھا۔ کچھ مسافر ریل گاڑی کے مختلف ڈبوں سے اترے اور اسٹیشن کی عمارت کی جانب بڑھے۔ کچھ سوار ہونے کے لیے افراتفری کے عالم میں بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ایک شخص جو وضاقتہ سے ریلوے کا ملازم نظر آتا تھا، ایک ہاتھ میں پانی سے بھرے ہوئے بالٹی اور دوسرے میں ایلومینیم کا گلاس تھامے کھڑکی کے پاس سے گزرا۔ رحیم داد نے اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ وہ پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا۔ یکایک قریب سے آواز ابھری، آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہے تو میرے پاس پانی موجود ہے، اسے جانے دیجیے۔ رحیم داد نے پلٹ کر دیکھا۔ ساتھ بیٹھا ہوا مسافر اس کی جانب نگاہیں اٹھائے بے تکلفی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ ادھیڑ تھا، سر پر بال بہت کم تھے اور ان میں بھی سیاہ کم اور سفید زیادہ تھے۔ وہ ململ کا باریک کرتا اور کھلی موری کا اجلا پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ جسم قدرے بھاری تھا، رنگ کھلتا ہوا گندمی تھا۔ آنکھوں پر چوڑے فریم کی اینک تھی۔ چہرہ بھرا بھرا تھا۔ بانسے پر کسی پرانی چوٹ کا نشان تھا، جس سے ناک تکونی ہو کر بدوضع ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ خاصا سفری ساز و سامان تھا۔ چوڑا چکلا اور اونچا ناشتے دان تھا۔ پانی سے بھری ہوئی سراہی تھی۔ تھرماس تھا۔ 2 ٹوکریاں تھیں، ایک میں تولیہ، کنگھا، صابن دانی اور ضرورت کی ایسی ہی دیگر اشیاء تھیں۔ دوسری آموں سے بھری ہوئی تھی۔
रख रखाव और आन बान से वो खाता पीता और बावकार नजर आता था। रहीम दाद खामोश रहा, मगर वो खामोश ना रहा। कहने लगा, ये कुएं का पानी है, इसे पी कर मैदा ख़राब हो जाने का अंदेशा है। गर्मी के मौसम में वैसे भी एहतियात से काम लेना चाहिए। उसने हाथ में दबा हुआ अखबार एक तरफ रखा, झुका, सुराही पर रखा हुआ शीशे का ग्लास उठाया, उसमें सुराही से पानी उंडेला। एन उस वक्त इंजन ज़ोर से चिंघाड़ा। गार्ड की सीटी चीखी, रेलगाड़ी एक झटके से खिसकी और लोहे की पटड़ियों पर आगे बढ़ने लगी। ग्लास में भरा हुआ पानी छलका। उसने फ़ौरन ग्लास मजबूती से पकड़ लिया। लम्हा भर तवक्कुफ़ किया, फिर ग्लास रहीम दाद की जानिब बढ़ाया। रहीम दाद ने उसे हाथ में ले लिया। होंठों से लगाना चाहा तो उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। थर्मास उठाया, उसका ढकना खोला, बर्फ़ की एक डली निकाली और ग्लास में डालते हुए बोला, अब आप शौक़ से पिएं। उसने नज़रें मोड़ीं और खिड़की से बाहर देखने लगा। सूरज अंगारे की मानिंद दहक रहा था। धूप की तमारत और चमक से उसकी आंखें खीरा हो गईं। बेकरार होकर उसने पहलू बदला और आहिस्ता आहिस्ता बिड़बिड़ाने लगा। गज़ब की गर्मी पड़ी है। उसने रहीम दाद की जानिब देखा। ठीक कहा जी आपने, आज तो बहुत गर्मी है। रहीम दाद ने पानी का ठंडा ठंडा घूंट भरते हुए उसकी तायीद की। ऐसी वैसी गर्मी है, दर दीवार से चिंगारियां उड़ रही हैं। उसने तौलिया उठाकर चेहरे और गर्दन का पसीना पूंछा। रहीम दाद की जानिब देखे बगैर निहायत शाइस्तगी से दरियाफ्त किया, नाम पूछ सकता हूँ आपका? चौधरी नूर इलाही। रहीम दाद ने सिर्फ नाम बताने पर इक्तिफा किया। तो गोया आप चौधरी साहब हैं। खूब, बहुत खूब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। उसने मुस्कुराकर इज़हार खुशनौदी किया। मुझे मिर्ज़ा इसरार बेग कहते हैं। मुज़फ़्फ़रगढ़ में कुछ ज़मींदारी है, वहीं से आ रहा हूँ। उसने किसी कदर तफसील से अपना तारुफ़ कराया। चौधरी साहब, आपका शुगल क्या है? इसरार बेग ने क़ियास आराई की। बज़ाहिर तो आप भी मुझे ज़मींदार मालूम होते हैं। हाँ जी, ज़मींदार ही हूँ, रहीम दाद ने जवाब दिया। उधर दीपालपुर में अपनी ज़मींदारी है। इधर कैसे आना हुआ? मिर्ज़ा इसरार बेग ने बात आगे बढ़ाई। मैं तो जी डेरा गाजी खां से आ रहा हूँ। रहीम दाद ने मुतल्ला किया। उधर भी तहसील राजनपुर में मुझे कुछ ज़मीन अलाट हुई है। मतरूका राजी है? मिर्ज़ा ने दिलचस्पी का इज़हार किया। हाँ जी, मतरूका राजी है। तो गोया आप भी मुहाजिर हैं। भाई, बहुत खूब। मिर्ज़ा इसरार बेग ने बेतकल्लुफ़ी से इज़हार मुसर्रत किया। चौधरी साहब, मुहाजिर तो मैं भी हूँ। मुज़फ़्फ़रगढ़ में मेरी जो आराज़ी है वो भी मेरे क्लेम की बुनियाद पर अलाट हुई है। रहीम दाद ने कुछ कहना चाहा, मगर मिर्ज़ा ने उसे बोलने का मौका ना दिया। आपसे तो अब तफसील से बातचीत होगी, क्यों न पहले खाना खा लिया जाए? उसने खिड़की से बाहर देखा। फ़िलहाल तो कोई स्टेशन नज़दीक नज़र नहीं आता। गाड़ी तो देर ही में रुकेगी। वो रहीम दाद की जानिब मुतवज्जे हुआ। बात यह है चौधरी साहब, मेरा मुलाजिम आगे के किसी थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहा है, मगर उसका इंतज़ार करना फजूल है। भूख भी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। क्या ख्याल है आपका? जैसी आपकी मर्ज़ी, वैसे मुझे भूख ज़्यादा नहीं लग रही। रहीम दाद ने तकल्लुफ़ से काम लिया। सामने की नशिस्त पर बैठे हुए एक मुसाफिर ने मदाखलत की। मैंने कहा जी, आगे कोट अद्दू है, वड्डा स्टेशन है, वहाँ ट्रेन देर तक ठहरेगी। रहीम दाद ने कोई तबसरा ना किया। अलबत्ता मिर्ज़ा इसरार बेग ने मुड़कर उस मुसाफिर की जानिब देखा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मुझे बिल्कुल ख्याल ना रहा कि कोट अद्दू पर गाड़ी खासी देर ठहरेगी। ज़्यादा देर इंतज़ार भी ना करना पड़ेगा।
وہ رحیم داد کی طرف متوجہ ہوا۔ چودھری صاحب، کھانا تو اب وہیں کھانا مناسب رہے گا۔ میرا ملازم آ کر کھانا لگا دے گا، بڑا مستعد اور فرما بردار ہے۔ میں ہمیشہ سفر میں اسے اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، کوٹ ادو ہی پر روٹی کھا لیں گے۔ رحیم داد نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو اسٹیشن پر مل جائے گی۔ مرزا اسرار بیگ نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی اور اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں تو آج کل سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ سنا ہے ڈیرہ غازی میں تو اور بھی زیادہ گرمی ہے۔ ویسے بھی وہاں کچھ زیادہ ہی گرمی پڑتی ہے۔ علاقہ بھی نہایت پسماندہ ہے، نہ ریل گاڑی ہے نہ کوئی ڈھنگ کی سڑک۔ آمد و رفت کے معاملے میں تو ادھر بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ہاں جی، وہاں کا حال کچھ ایسا ہی ہے۔ رحیم داد نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور جی، گرمی تو ادھر بہت ہی زیادہ ہے۔ اس نے گرمی کی شدت کا سبب بتانے کی کوشش کی۔ دور دور تک خشک اور بنجر پہاڑ پھیلے ہیں، گرمی تو پھیر پڑنی ہی چاہیے۔ مجھے بھی ڈیرہ غازی خان میں متروکہ اراضی الاٹ ہو رہی تھی، مگر جب وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے حالات کا جائزہ لیا تو ارادہ ترک کر دیا۔ زمینداری کے لیے تو نہایت ناموزوں جگہ ہے۔ سنا ہے مزارے بھی بہت سرکش اور اکھڑ ہیں۔ مرزا اسرار بیگ نے مسکرا کر رحیم داد کو دیکھا، بے تکلفی سے گویا ہوا۔ بھائی چودھری صاحب، آپ ادھر کہاں پھنس گئے؟ بس جی، پھنس ہی گیا۔ رحیم داد نے سنجیدگی سے کہا، دلاور والا میں 250 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ تو جی آپ کو پتہ ہی ہے الاٹ ہو ہی نہیں سکتی، پر اب میں نے سوچا کہ اسے فروخت کر دوں۔ یوں سمجھیے جی، سودا بھی طے ہو چکا ہے۔ بہت مناسب فیصلہ کیا آپ نے۔ مرزا نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ بات دراصل یہ ہے، ادھر زمینداری کرنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ وہاں تو صرف بلوچ سردار ہی زمینداری کر سکتے ہیں۔ ادھر تو جی حکومت ہی سرداروں کی ہے، جیلیں ان کی، کچہری عدالت ان کی۔ رحیم داد نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سرکاری افسر بھی جیسے ان کے اپنے بندے ہیں، جو چاہتے ہیں ان سے کرا لیتے ہیں، نہ کریں تو تبادلہ کرا دیتے ہیں۔ ان کی تو جی اوپر تک پہنچ ہے۔ میں نے بھی یہی سنا ہے، حالانکہ میرا وہاں بہت مختصر قیام رہا، مگر چند ہی روز میں صورتحال واضح ہو گئی۔ مرزا اسرار بیگ نے رحیم داد کی رائے سے اتفاق کیا۔ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر گویا ہوا، چودھری صاحب، یہ متروکہ اراضی کے معاملے میں 250 ایکڑ کی قید لگانے کی تک اپنی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ ہاں جی، پریشانی تو بہت ہوتی ہے۔ اب یہی دیکھیے، خوشاب میں بھی مجھے اتنی ہی زرعی اراضی الاٹ ہوئی ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ مرزا اسرار بیگ کے لہجے سے بیزاری ہویدا تھی۔ یہ ادھر ادھر بکھری ہوئی زمینداری درد سری کا باعث بنتی ہے۔ ایک ہی جگہ ساری زمینداری ہو تو یکسوئی اور اطمینان سے اس کی دیکھ بھال ہو سکتی ہے۔ میری اس رائے سے آپ بھی اتفاق کریں گے؟ ہاں جی، بات تو آپ نے ٹھیک ہی کہی، پر کیا کریں، حکومت نے پالیسی ہی ایسی بنا رکھی ہے۔ رحیم داد نے فوراً تائید کی۔ ویسے جی، میری اصلی زمینداری تو ضلع منٹگمری ہی میں ہے۔ کیا میں معلوم کر سکتا ہوں وہاں کتنی اراضی ہے آپ کے پاس؟ مرزا اسرار بیگ نے نہایت شائستگی سے سوال کیا۔ لگ بھگ 32 مربع ہوں گے۔ رحیم داد نے بڑے فخر سے مرزا اسرار بیگ کو مطلع کیا۔ تب تو چودھری صاحب، آپ خاصے بڑے زمیندار ہیں۔ مرزا اسرار بیگ نے مسکرا کر کہا، میرے پاس بھی بس اتنی ہی اراضی ہوگی۔ اس نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ کچھ زیادہ ہوگی، کوئی 1150-1200 ایکڑ۔ مگر صاحب، یہ بھی کیا زمینداری ہوئی؟ ادھر پنجاب اور ادھر سندھ میں تو ایسے بھی زمیندار ہیں جن کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے۔ سرحد اور بلوچستان کا حال تو صحیح طور پر معلوم نہیں۔
سنا ہے وہاں بھی بعض خوانین اور سرداروں کے پاس اتنی ہی بڑی زرعی اراضی ہے۔ ضرور ہوگی جی، رحیم داد بے تکلفی سے مسکرایا۔ ان کے سامنے تو جی ہم بہت چھوٹے زمیندار ہوئے، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ مرزا نے اتفاق رائے کیا۔ ویسے میری بھی اصلی زمینداری سندھ میں ہے، میرپور خاص کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہیں میری زمین ہے، کچھ الاٹمنٹ کے ذریعے ملی ہے، کچھ خریدی ہے، دوسری جگہ کی زمینیں فروخت کر کے خریدی ہوگی۔ رحیم داد نے نہایت بھونڈے پن سے اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ مرزا اسرار بیگ کو رحیم داد کا رویہ شاق گزرا، مگر اس نے درگزر کیا۔ وضاحت کے طور پر بتایا، چودھری صاحب، میرا معاملہ دوسرے مہاجرین سے بہت مختلف ہے۔ میں نے ہجرت کرنے سے پہلے ہی اپنا کچھ روپیہ یہاں منتقل کرا دیا تھا، زمین کا بیشتر حصہ میں نے اسی روپے سے خریدا۔ برا نہ منائیں جی، بہت سے مہاجرین نے اپنی زمینداری اسی طرح بڑھائی ہے۔ رحیم داد نے اپنے موقف کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اس دفعہ اس کا لہجہ نرم تھا اور اس میں معذرت کا بھی پہلو تھا۔ ایسا ہوا ہے اور بہت ہوا ہے، مرزا نے مسکرا کر کہا، اور ہونا بھی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ادھر ادھر بکھری ہوئی زمینداری میں بڑی درد سری اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک جگہ زمینداری ہو تو اطمینان سے دیکھ بھال ہوتی ہے۔ ویسے جی، متروکہ جائیداد کے معاملے میں بہت گڑبڑ ہوئی۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، مرزا اسرار نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، آپ سے کیا بتاؤں، متروکہ جائیداد کے سلسلے میں کیسی لوٹ مار مچی ہے۔ بعض لوگوں نے تو اسے باقاعدہ کاروبار بنا لیا ہے، جگہ جگہ الاٹمنٹ حاصل کرتے ہیں، اور جو ہی موقع ملتا ہے متروکہ مکانات اور دکانیں پگڑی پر دے کر یا بیچ کر کسی دوسرے شہر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس دھندے میں لاکھوں کے وارے نیارے ہو گئے۔ ضرور ہو گئے ہوں گے جی، جعلی فرد حقیقت اور جعلی کلیم فارموں کی بنیاد پر متروکہ اراضی کا الاٹمنٹ ایک علیحدہ ہی چکر ہے، میں آپ سے کیا کیا بتاؤں۔ مرزا اسرار بیگ نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ چودھری صاحب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بھائی، ایک دن مر کر اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اس وقت نہ دولت کام آئے گی نہ جائیداد۔ مرزا اسرار نے ران پر ہاتھ مارا اور گردن ہلا کر گنگنانے لگا۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ رحیم داد متاثر ہو کر بولا، ہاں جی، اصلی گل تو یہی ہے۔ اس کے لہجے سے خفت اور پشیمانی یہاں تھی۔ مرزا اسرار بیگ نے مزید بات چیت نہ کی، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سامنے چٹیل میدان تھا جس میں بگولے منڈلا رہے تھے۔ کہیں کہیں کیکر کی جھاڑیاں تھیں جو سایوں کی مانند دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ ریل گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی لوہے کی پٹڑیوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ کوٹ ادو آ گیا۔ ریل گاڑی اسٹیشن کے سامنے پہنچ کر ٹھہر گئی۔ پلیٹ فارم پر بھاگ دوڑ مچی تھی، طرح طرح کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ڈبے کے چند مسافر دروازہ کھول کر نیچے اتر گئے۔ کچھ نئے مسافر سوار ہوئے اور اپنا سامان ادھر ادھر رکھنے لگے۔ مرزا اسرار بیگ کا ملازم بھی ڈبے میں داخل ہوا۔ وہ بھی ادھیڑ تھا، ملکچا لباس، چہرے پر چھدری داڑھی، سر پر 2 پلی سفید ٹوپی، کندھے پر 4 خانے کا رومال۔ وہ پریشان اور گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مرزا نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ تم آ گئے؟ سرکار، آپ نے کھانا تو ابھی نہیں کھایا۔ ملازم نے ناشتے دان پر نظر ڈالی۔ میاں عبدل، تم بھی کمال کرتے ہو۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا کہ تم آؤ کھانا لگاؤ، مگر تم نے تو پلٹ کر خبر ہی نہ لی۔ نہ آتے تو خود ہی کھانا نکالنا پڑتا۔ ذرا آنکھ لگ گئی تھی جی، معافی چاہتا ہوں۔
अब्दुल ने आजिज़ी से सफाई पेश की। मैं तो हर स्टेशन पर हाज़िरी देता, मगर क्या करूं, जगह दूर के डब्बे में मिली है। छोटे स्टेशनों पर तो घड़ी भर के लिए गाड़ी ठहरती है। डरता हूं भाग दौड़ में कहीं ट्रेन ना छूट जाए। मुझे अपनी नहीं, आपकी तकलीफ़ की फ़िक्र थी। अच्छा, अब तुम बातें कम करो, मिर्ज़ा इसरार बेग ने उसे झिड़का। खाना लगाओ, सख्त भूख लगी है। अब्दुल ने फ़ौरन हुक्म की तामील की। टोकरी से जर्द रंग का छुपा हुआ छोटा सा दस्तरखान निकाला। मिर्ज़ा इसरार और रहीमदाद के दरमियान नशिस्त पर बिछाया। फर्श पर बैठकर नाश्तेदान खोला और दस्तरखान पर खाना चुन दिया। खाने में पराठे थे, भुना हुआ मुर्ग था, कबाब थे, आलू का सालन था, भिंडी की भुजिया थी, आम का अचार था। अब्दुल ने ग्लास में हाथ धोने का पानी दिया। मिर्ज़ा इसरार बेग और रहीमदाद ने खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर पानी से धोए और खाने की जानिब रुजू हो गए। खाना वाफिर था, मुर्गन था और खुश जायका भी था। दोनों रग़बत से खाना खाने लगे। अब्दुल ने टोकरी से आम निकाले और एक प्लेट में काट काट कर उनकी काशें रखने लगा। मिर्ज़ा इसरार बेग इसरार करके रहीमदाद को खाना खिलाने लगा। प्लेट उसकी जानिब सिरकाता, बार बार खाने के लिए कहता। रहीमदाद ने भी तकल्लुफ़ से काम ना लिया, खूब सैर होकर खाना खाया। दोनों खाने से फारिग भी ना हुए थे कि गार्ड की सीटी उभरी। अब्दुल ने जाना चाहा तो मिर्ज़ा इसरार बेग ने उसे रोक लिया। अब खाना खिला कर ही जाना, अगले स्टेशन पर उतरकर अपने कंपार्टमेंट में चले जाना। जो हुक्म सरकार का, अब्दुल ने निहायत अदब से जवाब दिया। रेलगाड़ी शोर मचाती आगे बढ़ी। रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार तेज़ होती गई। कोट अद्दू का स्टेशन, मकानात और कूचाओ बाज़ार पीछे रह गए। रहीमदाद और मिर्ज़ा इसरार बेग खाने से फारिग हुए तो अब्दुल ने बचा हुआ खाना उठाकर एक तरफ रखा। आम की काशों से भरी हुई प्लेट दस्तरखान पर रख दी। मिर्ज़ा ने प्लेट उठाई और रहीमदाद के सामने करते हुए बोला, चौधरी साहब, ये आम मुलाहिज़ा फरमाइए, मेरे अपने बाग के हैं। मैंने बागपत और मली आबाद से ख़ास तौर पर आम के पौधे मंगवा कर लगाए हैं। आपको ज़रूर पसंद आएंगे। रहीमदाद को आम पसंद भी आए। उम्दा और खुश जायका थे। हालांकि उसने कुछ ज़्यादा ही खाना खाया था, मगर आम इस कदर लजीज थे कि वो हाथ ना रोक सका। एक के बाद दूसरी काश उठाता रहा। मिर्ज़ा इसरार बेग खुश खुराक था। वो भी रग़बत और ज़ौक़ शौक़ से आम खाता रहा। प्लेट खाली हो गई तो अब्दुल ने और आम निकाले, मगर रहीमदाद ने मना कर दिया। मिर्ज़ा इसरार के इसरार करने के बावजूद आम खाने पर आमादा ना हुआ। दोनों ने एक बार फिर खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर धोए। बर्फ़ का ठंडा ठंडा पानी पिया और टांगें फैलाकर इत्मीनान से बैठ गए। अब्दुल ने दस्तरखान उठाया, झाड़ा और तह करके टोकरी में रख दिया। झूठे बर्तन उठाकर धोने की गर्ज से गुसलखाने में चला गया। वापस आकर उसने बर्तनों को भी टोकरी में रखा और बचा खुचा खाना लेकर एक कोशे में बैठकर खाने लगा। मिर्ज़ा इसरार बेग आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। रहीमदाद भी ऊँघ रहा था। रेलगाड़ी खटखट करती लोहे की पटड़ियों पर सरपट दौड़ती रही। एक छोटा स्टेशन आया। गाड़ी रुकी। अब्दुल उतरा और अपने डब्बे की जानिब चला गया। मिर्ज़ा इसरार ने खिड़की से गर्दन निकालकर उसे जाते हुए देखा। रेलगाड़ी आगे बढ़ी और तेज़ी से दौड़ने लगी। गर्मी अब और बढ़ गई थी। मिर्ज़ा ने पानों की डबिया उठाई, खोली और रहीमदाद की जानिब बढ़ाई। मुस्कुराकर कहा, लीजिए पान से शौक़ फरमाइए। रहीमदाद ने इनकार कर दिया। नहीं जी, मैं पान नहीं खाता। मिर्ज़ा ने मज़ीद इसरार नहीं किया। डिबिया से एक पान निकाल कर मुँह में रखा। बटुआ खोला, छालिया और तंबाकू निकाली, चुटकी भर कर मुँह में डाली। चंद लम्हे तक वो पान चुबाता रहा। फिर खिड़की से मुँह बाहर निकाल कर पीक थूकी।
रहीम दाद की जानिब मुतवज्जे हुआ। चौधरी साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने जी लाहौर जाना है। आपका तो खासा लंबा सफ़र है। मिर्ज़ा ने मुस्कुराकर रहीम दाद की तरफ देखा। कभी आपका कराची आना नहीं होता? नहीं जी, मैं अब तक कराची नहीं गया। रहीम दाद ने सादगी से जवाब दिया। मेरा मुस्तकिल क़ियाम कराची ही में रहता है, मिर्ज़ा इसरार बेग ने बताया। पहले जमशेद रोड पर रहता था। वहाँ मुझे एक कोठी अलाट हुई थी। कई साल उसमें मुकीम रहा, फिर उसे फ़रोख्त कर दिया। बातों की रूह में उसे बिल्कुल याद ना रहा कि कुछ ही देर पहले वो मतरूका मकानात और दुकानें अलाट कराने और उन्हें फ़रोख्त करके नए अलाटमेंट हासिल करने के रुझान की शदीद मज़म्मत कर चुका था। अब आप कहाँ रहते हैं जी? अब तो मैं अपने बड़े बेटे के साथ रहता हूँ। मिर्ज़ा ने रहीम दाद को मुतल्ला किया। वो सरकारी अफसर है। हाउसिंग सोसाइटी में उसने पिछले ही साल अपना बंगला तामीर कराया है। निहायत खूबसूरत और आलीशान है। आप उसे देखकर खुश होंगे। उसने एक बार फिर पान की पीक थूकी। वैसे हिंदुस्तान में मेरी जो कोठी थी वो भी कम शानदार न थी। ज़मींदारी भी बहुत बड़ी थी। पूरे 3 गांव थे। उसने गहरी सांस भरी। आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। सब कुछ छूट गया। ख्वाबो ख्याल हो गया। हाँ जी, सभी कुछ छूट गया। रहीम दाद ने उसकी तायीद की। कराची आइए तो गरीब खाने पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए, बल्कि मेरे साथ ही क़याम कीजिए, मिर्ज़ा ने कहा। मैं रुखसत होने से पहले आपको अपना पता और टेलीफ़ोन नंबर दे दूँगा। कराची आने का जब भी इरादा हो तो टेलीफ़ोन कर दीजिएगा या तार से मुतल्ला कर दीजिएगा। स्टेशन पर अपनी कार भेज दूँगा। आपको मतलब ज़हमत उठाना ना पड़ेगी। कराची आऊँगा तो जी आपको ज़रूर तार भेजूँगा। ज़रूर आइए। अब आपसे मुलाकात हो गई है तो इसे बरकरार भी रहना चाहिए। मिर्ज़ा ने इसरार किया। ये भी महज इत्तेफाक है, वरना मैं आम तौर पर फ़र्स्ट क्लास में ही सफ़र करता हूँ। इस ट्रेन में सिर्फ़ एक ही फ़र्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है और उसकी भी तमाम सीटें पहले ही से रिज़र्व थीं। मजबूरन सेकंड क्लास में सफ़र करना पड़ा। रहीम दाद ने कोई तबसरा ना किया। वो उसकी गुफ्तगू से इतना मरूब हो गया था कि मज़ीद बातचीत ना कर सका। खामोश बैठा रहा, मगर मिर्ज़ा इसरार बेग ज़्यादा देर खामोश ना रह सका। कहने लगा, मेरा मशवरा माने तो हमेशा फ़र्स्ट क्लास ही में सफ़र करें। किराया तो ज़्यादा अदा करना पड़ता है, मगर सफ़र आराम व सकून से गुज़रने के साथ साथ ताल्लुकात पैदा करने और मरासिम बढ़ाने का पूरा पूरा मौका मिलता है। रहीम दाद का चेहरा बिल्कुल सिपाट था। वो बात की तह तक ना पहुँच सका। मिर्ज़ा इसरार बेग फ़ौरन ताड़ गया, मुस्कुराया और खुलकर बताने लगा। चौधरी साहब, ये तो आप भी बखूबी जानते हैं कि ज़िंदगी में असर व रसूख पैदा किए बगैर काम नहीं चलता। उसका लहजा राज़दाराना हो गया। फ़र्स्ट क्लास में आला सरकारी हुकाम के अलावा असम्बलियों के मेंबरों और कभी कभी तो वज़ीरों से भी मरासिम पैदा करने के मौक़े मिल जाते हैं। किसी ने सच कहा है, सफ़र वसीला ज़फ़र। मैंने तो भाई बुज़ुर्गों के इस कौल को गिरह में बांध लिया है। वो खिलखिलाकर हंसा। रहीम दाद भी हंसने लगा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मिर्ज़ा इसरार बेग की आवाज़ उभरी। उसने बात छेड़ी। चौधरी साहब, हिंदुस्तान के किस इलाके से आपका ताल्लुक़ रहा है? मैं जी गुरदासपुर में होता था। वहाँ तो बड़ा खून खराबा हुआ। मुसलमानों का ज़बरदस्त कत्लेआम हुआ। सिखों और हिंदुओं ने बड़े मज़ालिम ढाए। उसने इज़हार हमदर्दी किया। भाई, आपने तो बहुत दुख उठाए होंगे, बड़ी तबाही और बर्बादी देखी होगी। न जाने कैसी कैसी मुसीबतें और तकलीफ़ें उठाकर पाकिस्तान पहुँचे होंगे। न पूछिए जी, क्या क्या दुख ना उठाने पड़े। उसने लहजे में रिक्कत पैदा करने की कोशिश की।
बस किसी न किसी तरह इधर पहुंच ही गया। रहीम दाद ने चौधरी नूर इलाही मरहूम की उस अलमनाक रूदात को सुनाने से इज्तनाब बरता जिसे वो अपनी ज़ात से मंसूब करके अक्सर सुनाता था और उसकी बुनियाद पर सुनने वालों की हमदर्दी हासिल करता था, मगर अब वो एहतियात से काम लेता था और तफसील में जाने से गुरेज करता था। मिर्ज़ा इसरार बेग को तो वो कसदन कुछ बताना न चाहता था। मिर्ज़ा की गुफ्तगू से ये तो वाज़े ही हो चुका था कि वो मुहाजिर है। मुमकिन है गुरदासपुर में भी रह चुका हो या वहाँ के किसी ऐसे मुहाजिर ख़ानदान से वाकिफ़ हो जो चौधरी नूर इलाही मरहूम का अज़ीज़ या रिश्तेदार हो। तफसीलात बताने में ख़तरे का इम्कान था और वो कोई ख़तरा मोल लेना न चाहता था। उसने चेहरे पर अफसुर्दगी के तासुरात पैदा किए। बुझे हुए लहजे में गोया हुआ, अब तो जी सारी बातें पुरानी हो गईं। कभी याद आ जाती हैं तो यूं लगता है जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ। हाँ चौधरी साहब, वो एक डरावना ख्वाब ही था। मिर्ज़ा इसरार बेग ने आह सर्द खींची। घर बार, मालो दौलत, इज़्ज़त व नामूस सब कुछ लुटा और उसे लुटते हुए इन गुनाहगार आँखों से देखना भी पड़ा। उसके चेहरे पर दुख के साए फैल गए। काश ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा ना रहता। उसकी आवाज़ भर्रा गई, आंखें नमनाक हो गईं। उसने ऐनक उतारी, रूमाल से आंसू पूंछे। चौधरी साहब, एक बार जब ये ज़ख़म हरे हो जाते हैं तो कलेजा कटने लगता है। ऐसी टीस उठती है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। बेइख्तियार दिल भर आता है। रहीम दाद उसका हिज़्नो मलाल देख कर बहुत मुतासिर हुआ। तसल्ली देने के अंदाज में बोला, सब्र करें जी, जो होना था वो तो हो ही गया, अब तो सब्र ही करना पड़ेगा। मिर्ज़ा इसरार बेग खोया खोया सा बैठा रहा। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छाई थी। ऊपर की नशिस्त पर लेटा हुआ मुसाफिर उतर कर नीचे आ गया। वो शरीर बदन का कद आवर जवान था। वो सामने की नशिस्त पर जाकर बैठ गया। बुशर्ट की जेब से कंघा निकाला और सर के बिखरे हुए बालों को दुरुस्त करने लगा। मिर्ज़ा इसरार बेग ने उसकी जानिब कोई तवज्जो न दी। वो नज़रें झुकाए ख्यालात में गर्क था। कुछ देर बाद उसने गर्दन उठाई, रहीम दाद की जानिब देखा और दिल गिरफ्ता होकर बोला, चौधरी साहब, सच पूछिए तो पाकिस्तान हमारे और आपके ऐसे लुटे पिटे और सितम रसीदा मुहाजिरीन की कुर्बानियों से हासिल हुआ है। उसके लहजे में अचानक जोशो खरोश पैदा हो गया। हमने सब कुछ लुटाकर और अपने प्यारों के खून का नजराना देकर ये नया वतन बनाया है। रहीम दाद तो खामोश रहा, मगर इस बार सामने बैठे हुए नौजवान की आवाज़ उभरी। वो उलझे हुए बालों को कंघे से संवारते हुए कह रहा था, मिर्ज़ा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वाकई आपने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी हैं। मैं तो इसका ऐनी शाहिद हूँ। मिर्ज़ा इसरार बेग ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। आपकी तारीफ़? उसका लहजा तीखा था। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। खाकसार को सगीर अहमद कहते हैं। उसने कंघा जेब में रखा। मिर्ज़ा साहब, आप तो शायद मुझे ना जानते हों, मगर मैं आपकी ज़ाते गिरामी से बखूबी वाकिफ़ हूँ। देहरादून का रहने वाला कौन आपसे वाकिफ़ ना होगा। आप तो बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। मैं तो आपको उस वक्त से जानता हूँ जब आप ज़िला कचहरी में आराइज़ नवीस थे, और फिर आपका वो दौर भी देखा जब आप कांग्रेसी नेता बन गए। उन दिनों आप खादी का कुर्ता और पाजामा और बिना चाम की फटी हुई चप्पल पहनते थे, गांधी टोपी लगाते थे। पिंडत गोबंदोलब पंत, रफ़ी अहमद कदवाई, हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम और ऐसे ही बड़े कांग्रेसी नेताओं की आमद पर पेश पेश होते थे, उनका स्वागत करते थे।
गले में हार फूल डालते थे, जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगाते थे। मियाँ अब बस भी कीजिए, मिर्ज़ा इसरार बेग ने सगीर अहमद को टोका। खुदा मालूम आप किसका जिक्र ले बैठे, मेरा तो कभी कांग्रेस से ताल्लुक़ नहीं रहा, मालूम होता है आपको मेरे बारे में मुगालता हुआ। मिर्ज़ा साहब, आपके बारे में तो हरगिज़ मुगालता नहीं हो सकता, सगीर अहमद ने निहायत एतमाद से कहा। मैं ऊपर लेटा बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा था। मैंने तो आपकी वो आलीशान कोठी भी देखी है जो राम गली के नुक्कड़ पर वाक़े थी। वो बदस्तूर मुस्कुराता रहा। मुमकिन है वो कभी कोठी रही हो, मगर मैंने जिसे देखा वो एक बोसीदा मकान था जिसकी दीवारें कई से काली पड़ चुकी थीं। दरवाजे पर कुवाड़ों के बजाय फटा पुराना पर्दा पड़ा रहता था और उसका मालिक भी माता दीन हलवाई था। वही माता दीन हलवाई जिसकी सदर बाज़ार में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। आप शदीद गलत फहमी में मुब्तला हैं। मिर्ज़ा इसरार बेग ने इस बार तल्ख लहजे में मुदाखलत की। खुदा मालूम आप किसका जिक्र कर रहे हैं, मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं कि राम गली कहाँ है। आपको पता नहीं, मगर मुझे पता है। सगीर अहमद अपनी बात पर अड़ा रहा। हाँ, ये पता नहीं कि आपकी ज़मींदारी के वो पूरे 3 गांव कहाँ वाक़े थे जिनका आप जिक्र फरमा रहे थे। माफ़ कीजिए, मैंने तो आपको हमेशा फटे हाल देखा। उसने दोनों हाथ जोड़कर इज्जो इनकिसार का मुजाहिरा किया। अलबत्ता इलेक्शन का ज़माना आपके अरूज का ज़माना था। उस वक्त आपका लिबास भी उजला होता, हर वक्त गले में पान का बीड़ा दबा होता और बीड़ी के बजाय सिगरेट से शौक फरमाने लगे थे। और जब आप ज़िला कांग्रेस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए तब तो आपके ठाठ बाट और भी बढ़ गए थे। सुना है उन दिनों राय साहब कंवर कन्हैयालाल की जानिब से आपका माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया था। आप कंवर साहब को तो अच्छी तरह जानते होंगे, वही जिनके देहरादून में चाय के बागात थे। देखिए मियाँ साहबजादे, आप बहुत ज़्यादती फरमा रहे हैं, मिर्ज़ा इसरार बेग ने खफा होकर कहा। मिर्ज़ा साहब, मैं तो कोई ज़्यादती नहीं कर रहा हूँ, वो निहायत इत्मीनान से बोलता रहा। ज़्यादती तो आपने सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि देहरादून के सारे ही मुसलमानों के साथ उस वक्त फरमाई जब आप मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के मुकाबले में सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ना चाहते थे। मैं उन दिनों मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में था और दूसरे मुसलमान तलबा के साथ मैंने आपके घर के सामने भूख हड़ताल भी की थी ताकि आप इस इरादे से बाज आ जाएं। भैया, आप कहाँ की हाँक रहे हैं? इस दफ़ा मिर्ज़ा इसरार बेग ने दुरुस्त लहजे में कहा। मालूम नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, कैसा इलेक्शन? किसका इलेक्शन? मैंने तो कभी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा। लड़ते तो आप ज़रूर, कोशिश भी पूरी की थी, मगर कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने टिकट ही नहीं दिया। सगीर अहमद ने कहा। सुना है आपने तो बोर्ड के फैसले के ख़िलाफ़ कांग्रेस हाई कमान से अपील भी की थी, लेकिन वो भी मुस्तरद हो गई। इसके बावजूद आपकी वफ़ादारी में फ़र्क ना आया। उन दिनों नेशनलिस्ट मुस्लिम की इस्तिलाह वज़ा हुई थी। आप भी नेशनलिस्ट मुस्लिम बन गए थे और कांग्रेसी उम्मीदवार के लिए दिन रात भाग दौड़ करते थे। वो खिलखिला के हंसने लगा। ये खाकसार उस ज़माने में तलबा के उस गिरोह में शामिल था जिसका काम नेशनलिस्ट मुसलमानों के जलसों को दरहम बरहम करना और नाकाम बनाना होता था। उसने मिर्ज़ा इसरार बेग की आंखों में झांकने की कोशिश की। आपको तो अच्छी तरह याद होगा, एक बार इंतखाबी जलसे में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। लाठियाँ और डंडे चले, कुर्सियाँ उठा कर फेंकी गईं। एक कुर्सी आपके चेहरे अनवर पर लगी। आप शायद जलसे की सदारत फरमा रहे थे। कुर्सी आपके चेहरे पर ऐसी लगी कि नाक ज़ख्मी हो गई। आपको अस्पताल जाना पड़ा था। रहीम दाद ने झट मिर्ज़ा इसरार बेग की तिकोनी और बदवज़ा नाक की जानिब देखा और यकलख्त देखता रहा, गौर करता रहा
کہ नाक पर चोट का निशान भी है। सगीर अहमद ने रहीम दाद की जानिब तवज्जो न दी, निहायत इत्मीनान से बोलता रहा। मिर्ज़ा साहब, आप अस्पताल से निकले तो लौंडे लपाड़े आपकी नाक देखते थे और शरारत से मिर्ज़ा संघाड़ा का नारा लगाते थे। तब से आपका नाम मिर्ज़ा संघाड़ा पड़ गया। जिधर नज़र उठती दीवारों पर मिर्ज़ा संघाड़ा लिखा हुआ नज़र आता। आपके अजीब व गरीब कार्टून बने होते। ज़बान संभाल कर बात करें। मिर्ज़ा इसरार बेग एकदम फट पड़ा। गुस्से से चेहरा सुर्ख पड़ गया। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। वो गज़ो गज़ब के आलम में हाँपने लगे। आप हद से तजावुज़ करते जा रही हैं। मिर्ज़ा इसरार की ऊंची आवाज़ सुनकर डब्बे में बैठे हुए तमाम मुसाफिर दोनों की तरफ मुतवज्जे हो गए। सगीर अहमद के चेहरे से भी अब मुस्कुराहट और शगुफ्तगी गायब हो चुकी थी। उसने तीखी नज़रों से देखा और तड़प कर बोला, मिर्ज़ा साहब, उन ज़ख्मों को भी तो याद कीजिए जो आपने सितम रसीदा मुसलमानों को महज सियासी इख्तिलाफात की बिना पर लगाए थे। याद कीजिए वो दिन जब देहरादून में फसादात की आग भड़की। हरद्वार से शरणार्थियों के गौल देहरादून पहुंचने लगे और मकामी हिंदुओं और सिखों के साथ मुसलमानों पर हमले करने लगे। राष्ट्रीय सेवक सिंह के वॉलंटियर खंजर और बलम उठाए हर तरफ दंदनाते फिरते थे। मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला इश्तिआल अंगेज नारे लगाते थे। रेलगाड़ियां पटरियों पर तेजी से दौड़ती रही। डब्बे के तमाम मुसाफिर सगीर अहमद की जानिब देख रहे थे और वो तीखे लहजे में बोल रहा था, मिर्ज़ा साहब, आपको वो रात तो याद होगी जब मुतासिरा मोहल्लों के मुसलमान किसी न किसी तौर वायसरॉय रोड पहुंचने में कामयाब हो गए थे। वो मुसलमानों का मजबूत गढ़ था, मगर बलवाइयों की उस पर निगाह थी। उन्होंने उस रात हमला करने का मंसूबा बनाया। तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं, पर हमला तो जी हिंदुओं और सिखों ने करना था। रहीम दाद ने मिर्ज़ा इसरार बेग की हिमायत में मदाखलत की। मिर्ज़ा साहब को उनके हमलों से क्या लेना था? सुनते जाइए। सगीर अहमद ने रहीम दाद की तरफ देखा। जब हमले की इत्तला मुसलमानों को पहुंची तो उनका एक वफ्द छुपता छुपाता किसी न किसी तरह मिर्ज़ा साहब के पास पहुंचा। दरख्वास्त की कि मुसलमानों की जानो माल बचाने के लिए आला हुक्काम से मदद दिलवाई जाए। मैं उस वफ्द में शामिल था, मुझे याद है। उसने मिर्ज़ा इसरार बेग को मुखातिब किया। मिर्ज़ा साहब, आपको भी अच्छी तरह याद होगा कि आपने किस किस्म की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। जब बार बार गिड़गिड़ा कर फरियाद की, दुहाई दी, तो आपने धुतकार दिया था और तंजिया फरमाया था, मेरे पास क्यों आए हो? पाकिस्तान जाओ। तुमने अपना पाकिस्तान बना लिया, अब तुमको वहीं अमा मिलेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। याद है ना आपको? आपको शायद अब याद ना रहा हो, मगर मुझे अब तक एक एक बात याद है। आप कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में निहायत आन-बान से कुर्सी पर बैठे थे और निहायत इत्मीनान से पान चुबा रहे थे। क्यों मिर्ज़ा साहब, ये सच कह रहे हैं? सगीर अहमद के बराबर बैठे हुए एक मुसाफिर ने दरियाफ्त किया। भाई, मुझे तो कुछ खबर नहीं, इन्हीं से पूछो। मिर्ज़ा इसरार बेग ने सगीर अहमद की जानिब हाथ उठाकर कहा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। आवाज़ में हल्की हल्की लर्जिश थी। ये जो कुछ कहें ठीक है। मैं बूढ़ा, ये जवान, मैं इनके साथ धींगा मुश्ती करने से रहा। आगे क्या हुआ जी? हिंदुओं और सिखों के हमले का क्या बना? रहीम दाद ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया। वो तो महावीर त्यागी को दुआ दीजिए कि उन्होंने हज़ारों मुसलमानों को उस रात कत्लो गारत करी से बचा लिया। वो कौन थे जी? उस वक्त वो यूपी असम्बली के मेंबर थे, सगीर अहमद ने बताया। मिर्ज़ा साहब की तरफ से नाउमीद होने के बाद मुसलमानों का वफ्द उनके पास पहुंचा। पर वो तो हिंदू था, वो क्या मदद करता? सगीर अहमद के बराबर बैठे हुए मुसाफिर ने
अपने फौरी रद्द अमल का इजहार किया। वो न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि कट्टर कांग्रेसी भी हैं, सगीर अहमद ने जवाब दिया। उन्होंने वफ्द की बातें पूरी तवज्जो से सुनी और सूरत हाल की नज़ाकत को भी महसूस किया। उसी वक्त एसपी को फ़ोन किया। वो सिख था और निहायत मुतासब सिख था। उसने पुलिस की इमदाद मुहैया करने से साफ इनकार कर दिया, मगर त्यागी जी ने हौसला न हारा। डिप्टी कमिश्नर से फ़ोन पर राब्ता कायम किया, उसे सूरत हाल से आगाह किया। वो भी मुतासब हिंदू था। उसने किसी किस्म की मदद देने के बजाय उल्टा त्यागी को ताना दिया। कहने लगा, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों का जो कत्लेआम हो रहा है उनकी आपको कोई फिक्र नहीं, यहाँ के मुसलमानों का बड़ा गम है। तब तो त्यागी भी कुछ ना कर सका होगा। एक मुसाफिर ने तबसरा किया। नहीं जनाब, त्यागी जी ने तब भी हथियार ना डाले, बड़ी जुर्रत का मुजाहिरा किया, सगीर अहमद ने बताया। उन्होंने गुस्से से डिप्टी कमिश्नर को डांटा, चीख कर कहा, मैं तुमको मुअत्तल करता हूँ और शहर का इंतज़ाम इसी वक्त से अपने हाथ में लेता हूँ। उन्होंने किया भी ऐसा ही। फ़ौरन अपनी जीप निकाली, कांग्रेस के कुछ वॉलंटियर अपने साथ लिए, वफ्द के मेंबरों को दूसरी जीप ने बिठाया। एसपी को भी मुअत्तल किया। जिस थानेदार ने इनकार किया उसे भी फ़ौरन मुअत्तल किया। पुलिस की एक मुसल्ला जमीयत अपने साथ ली। जीप पर लाउड स्पीकर नस्ब कराया। वाइसरॉय रोड पहुँचे, मुसलमानों को इत्मीनान दिलाया। वहाँ से उस इलाके में गए जहाँ हमले की तैयारियां हो रही थीं। लाउड स्पीकर पर उनको खबरदार किया कि अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी, ज़रूरत पड़ी तो फायरिंग भी की जाएगी, ज़रा भी किसी बलवाई के साथ रियायत नहीं होगी। इसका क्या नतीजा निकला? रहीम दाद ने दरियाफ्त किया। हुआ ये कि बलवाई डर गए और ऐसे डरे कि दोबारा मुसलमानों पर हमला करने की हिम्मत ना हुई, सगीर अहमद ने बताया। मगर बाद में मुसलमानों के लिए हालात ख़राब ही होते गए। उसने मुस्कुराकर मिर्ज़ा इसरार बेग की जानिब देखा। यहाँ तक कि मिर्ज़ा साहब को भी हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ा। उनके बड़े साहबजादे पहले ही पहुँच चुके थे। सुना है वो क्लेम अफसर हैं। क्यों मिर्ज़ा साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? मैं तो यही कहूँगा कि आप गलत फहमी का शिकार हैं। मिर्ज़ा इसरार बेग ने हठधर्मी से काम लिया। उसने गुफ्तगू का मौजू बदलने की गर्ज से पूछा, अच्छा अब इस कज़िये को छोड़िए, ये बताइए आपका शुगल क्या है? मिर्ज़ा इसरार बेग ने झींप मिटाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की, मगर सगीर अहमद मतलक मुतासिर ना हुआ। उसका लहजा बदस्तूर तंजिया था। आप मतलक परेशान ना हो, न मैं CID में हूँ न मेरा इससे कोई ताल्लुक़ है। मैं महकमा ज़राअत से वाबस्ता हूँ। सेकंड क्लास में देखकर आप मेरे बारे में किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो। मैं मामूली सरकारी मुलाजिम हूँ। थल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में रेगज़ार की खाक छानता फिरता हूँ। आम तौर से थर्ड क्लास में सफ़र करता हूँ या कभी कभार इंटर में। आज थर्ड और इंटर क्लास में जगह ना मिल सकी तो सेकंड क्लास में बैठ गया। रात भर का जागा हुआ भी था। उसके होंठों पर जहरखंद नमूदार हुआ। बहरहाल आपको किसी तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मतरूका जायदाद की लूट मार इतनी आम है कि किस किस को जाली क्लेम और जाली अलाटमेंट हासिल करने का इल्ज़ाम दिया जाए। क्या महाजिर क्या मकामी, इस हमाम में सब नंगे हैं। उसकी बातें सुनकर रहीम दाद का चेहरा भी फ़क हो गया। वो गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगा। मिर्ज़ा इसरार बेग ने भी कोई तबसरा ना किया। खामोशी से अखबार उठाकर पढ़ने लगा। सगीर अहमद उठा और दरवाज़ा खोलकर गुसल खाने में चला गया। रहीम दाद ने आंखें बंद कर लीं और टांगें किसी कदर फैला दीं। नींद का गलबा हुआ। वो रेलगाड़ी के झटकों के साथ आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगा। एक बार नींद का ऐसा झोंका आया कि उसका सर खिड़की से टकरा गया। रहीम दाद ने घबरा कर आंखें खोल दीं।
مرزا اسرار بیگ اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ رحیم داد خفیف ہو کر آنکھیں ملنے لگا۔ مرزا اسرار بیگ نے مشورہ دیا، چودھری صاحب، آپ کو نیند معلوم ہو رہی ہے، اوپر جا کر اطمینان سے سو جائیے، یہاں آپ بے چین رہیں گے۔ رحیم داد نے اس کا مشورہ قبول کر لیا، جوتے اتارے اور اوپر کی نشست پر چلا گیا، قمیض اتار کر کھونٹی پر ٹانگ دی۔ مرزا اسرار بیگ سے تکیہ لے کر سرہانے رکھا اور ٹانگیں پسار کر اطمینان سے لیٹ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھت سے لگے ہوئے پنکھے کا رخ بھی اپنی طرف کر لیا۔ کچھ دیر آنکھیں بند کیے خاموش پڑا رہا، پھر سو گیا۔ ریل گاڑی شور مچاتی کھٹ کھٹ کرتی دوڑتی رہی۔ اسٹیشن آتے رہے، جاتے رہے۔ ریل گاڑی ٹھہرتی اور پھر آگے بڑھ جاتی۔ مسافر اترتے رہے، سوار ہوتے رہے۔ لیا کا اسٹیشن آیا تو صغیر احمد نے اپنا اٹیچی کیس سنبھالا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مرزا اسرار بیگ خاموش بیٹھا تھا۔ صغیر احمد نے اس کی جانب دیکھا، مسکرا کر ایک بار پھر اسے چھیڑا، کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ مرزا سنگھاڑا؟ وہ کھل کر مسکرایا۔ معاف کیجئے مرزا اسرار بیگ صاحب، اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ مرزا اسرار بیگ نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ صغیر احمد آگے بڑھا اور ڈبے سے نکل کر باہر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اسٹیشن کی عمارت کی جانب بڑھنے لگا۔ مرزا اسرار بیگ اسے دور تک دیکھتا رہا۔ ریل گاڑی آگے بڑھ گئی۔ مرزا اسرار بیگ خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ چھائی تھی۔ اس نے نہ کسی مسافر کی جانب دیکھا، نہ کسی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ صغیر احمد نے اس کے ذہن میں کھلبلی برپا کر دی تھی۔ رحیم داد اوپر کی نشست پر بے خبر سوتا رہا۔ دن ڈوبا، رات ہو گئی، ہر سو اندھیرا پھیل گیا۔ مرزا اسرار بیگ نے رحیم داد کو آہستہ آہستہ جھنجھوڑا۔ رحیم داد نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مرزا نے مسکرا کر کہا، چودھری صاحب، بہت سو چکے ہیں، رات ہو گئی، اٹھیے کھانا کھا لیجئے۔ رحیم داد آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، نشست سے نیچے اترا، قمیض کھونٹی سے اتار کر پہنی اور غسل خانے میں چلا گیا۔ رحیم داد منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا اور مرزا اسرار بیگ کے برابر بیٹھ گیا۔ اس کا ملازم عبدالموجود تھا۔ اس نے کھانا لگا دیا۔ رحیم داد نے کھانا کھاتے ہوئے ڈبے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ مسافروں میں اب نئے چہرے نظر آ رہے تھے، پرانے غائب تھے۔ صغیر احمد بھی اسے دکھائی نہ دیا۔ رحیم داد نے مرزا اسرار بیگ سے دریافت کیا، وہ بندہ چلا گیا؟ میرا مطلب ہے صغیر احمد گیا؟ جی ہاں، وہ مردود دفان ہو گیا۔ مرزا نے جل کر کہا، لیا پر اتر گیا، عجب نامعقول شخص تھا۔ ہاں جی، چنگا بندہ نہیں تھا، رحیم داد نے تبصرہ کیا۔ سخت واہیات شخص تھا، نہایت لپاڑیا۔ مرزا اسرار بیگ غصے سے بل کھاتے رہے اور احمد کو برا بھلا کہتے رہے۔ خدا معلوم یہ خبیث کہاں سے نازل ہو گیا۔ آپ کی جی اس کے ساتھ کب کی جان پہچان ہے؟ توبہ کیجئے چودھری صاحب، میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا تھا، خدا دوبارہ نہ دکھائے۔ اسرار بیگ نے صفائی پیش کی۔ مجھے تو حیرت اس کی ڈھٹائی پر ہے، کس دھڑلے سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا، طرح طرح کے الزام لگا رہا تھا۔ نہ میں کبھی دہرادون میں رہا، نہ میرا کبھی کانگریس سے تعلق رہا، میں تو پانی پت کا رہنے والا ہوں، وہیں سے لٹ پٹ کر پاکستان آیا۔ آپ نے جی اسے صاف صاف یہ گل بات بتائی کیوں نہیں؟ رحیم داد نے لقمہ چباتے ہوئے دریافت کیا۔ چودھری صاحب، اس نامعقول نے مجھے بولنے کا موقع ہی کب دیا، برابر اپنی ہی ہانکتا رہا۔ اسرار بیگ نے جھنجھلا کر کہا۔
اس کے جھوٹے الزامات کا تو صرف ایک ہی جواب تھا، اور وہ یہ تھا، جوتا اٹھا کر اس کی چندیا پر تڑا تڑ لگائے جاتے۔ ساری ٹھٹھول بازی نکل جاتی، مگر ہاتھا پائی میں فائدہ کس کا ہوتا؟ مجھے تو وہ کوئی اوباش اور چپڑ قناتیا لگتا تھا۔ اس کا کچھ نہ جاتا، اس کی عزت ہی ہے جو جاتی۔ شریف آدمی تو شرافت میں مارا جاتا ہے، اسی لیے خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس نے تو جی بہت بکواس کی، طبیعت ایسی مقتد کر دی کہ کھانا کیا کھا رہا ہوں، زہر مار کر رہا ہوں۔ مرزا اسرار بیگ نے اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ غضب خدا کا، کیسے کیسے نازیبا الزام لگائے، اور کس ٹھٹائی سے، جن کا نہ سر نہ پیر۔ وہ صغیر احمد کے بارے میں جلی کٹی سناتا رہا، اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ رحیم داد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ مرزا کے ملازم عبدل نے جھوٹے برتن دھو کر صاف کیے، ٹوکری میں حفاظت سے رکھے، ناشتہ دان بند کیا۔ اسٹیشن آیا تو وہ اپنے ڈبے کی طرف چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، رات تاریک ہوتی گئی۔ مرزا اسرار بیگ نے رحیم داد کو مخاطب کیا، چودھری صاحب، خوشاب تک تو آپ کا ساتھ رہے گا۔ آپ سرگودا کے راستے لاہور جائیں گے نا؟ نہیں جی، میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا۔ رحیم داد نے انکار میں گردن ہلائی، حالانکہ وہ شاہزور مزاری کے ہمراہ اسی راستے سے آیا تھا، واپس بھی اسی راستے سے جانا چاہتا تھا۔ روانگی سے قبل اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کہنے لگا، میں تو جی پنڈی جاؤں گا، وہاں سے لاہور کے لیے ٹرین پکڑوں گا۔ بہرحال کندیاں تک تو ساتھ رہے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ رحیم داد نے اس کی تائید کی۔ بلا شبہ مرزا اسرار بیگ کے ساتھ اس کا سفر نہ صرف اچھا گزرا تھا بلکہ بڑے آرام سے گزرا تھا۔ کھانے پینے کے علاوہ اسے مرزا سے ہر طرح کی سہولت ملی تھی۔ کندیاں آ گیا، عبدل ڈبے میں قلی کے ہمراہ داخل ہوا۔ اس نے تمام سامان باہر نکالا۔ مرزا اسرار بیگ رخصت ہوتے ہوئے رحیم داد سے بغل گیر ہوا، مگر نہ اس نے اپنا کراچی کا پتہ دیا اور نہ ہی رحیم داد نے طلب کیا۔ مرزا اسرار بیگ ڈبے سے نکل کر باہر گیا تو رحیم داد بھی اس کے ساتھ پلیٹ فارم پر گیا۔ ریل گاڑی آگے روانہ ہوئی تو ڈبے میں صرف 2 مسافر رہ گئے، مگر داؤد خیل پر وہ بھی اتر گئے۔ ڈبہ اب بالکل خالی رہ گیا تھا۔ رات ڈھل چکی تھی، مگر رحیم داد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سپہر بہت دیر تک گہری نیند سو چکا تھا۔ رحیم داد کچھ دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ڈبے میں اندھیرا تھا۔ رحیم داد نے بستر پر لیٹنے سے قبل تمام بتیاں بجھا دی تھیں۔ صرف غسل خانے کی بتی روشن تھی، جس کی مدھم روشنی دروازے میں لگے ہوئے شیشے سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی، مگر یہ روشنی اتنی کم تھی کہ ایک زرد دھبے کی مانند نظر آتی تھی۔ رحیم داد کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ ریل گاڑی اندھیرے میں دوڑتی رہی، کسی بستی کے نزدیک سے گزرتی تو دور سے چراغوں کی روشنی جگنوؤں کی طرح ٹمٹماتی ہوئی معلوم ہوتی۔ بستی قریب آتی تو روشنیوں کی جگمگاہٹ تیز ہو جاتی اور آن کی آن میں گزر کر پیچھے رہ جاتی۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی۔ رحیم داد اتر کر پلیٹ فارم پر چلا گیا۔ ریل گاڑی کچھ دیر وہاں تھی۔ رحیم داد ٹہلتا ہوا انجن تک چلا گیا۔ گارڈ کی سیٹی چیخی تو وہ چونکا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے ڈبے کی طرف چلا۔ اس کا ڈبہ بہت پیچھے تھا۔ رحیم داد سخت پریشان ہوا۔ گاڑی میں حرکت پیدا ہوئی تو وہ اور زیادہ پریشان ہوا۔ اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب گاڑی کی رفتار بڑھ گئی تھی، مگر رحیم داد اچھل کر پائیدان پر قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہینڈل پکڑا، دوسرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔
डब्बे में अंधेरा छाया था। रहीम दाद ने दरवाज़ा बंद किया, चिटखनी चढ़ाई और दरवाजे से पीठ लगाकर ज़ोर ज़ोर से हाँपने लगा। उसकी सांस नूस फैली हुई थी, औसान बजा न थे। जब ज़रा करार आया और आंखें अंधेरे से मानूस हुईं तो उसे अपने करीब सरसराहट महसूस हुई। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, तमाम नशिस्तें खाली थीं। वो हैरानो परेशान दरवाजे के करीब खड़ा था। यकायक धुंधली रोशनी में एक साया लहराया। रहीम दाद ने सरासीमा होकर देखा। चंद कदम के फासले पर कोई खड़ा था। रहीम दाद खौफज़दा नज़रों से उसकी जानिब देखने लगा। ना वो बोला ना रहीम दाद, दोनों अपनी अपनी जगह बुत बने खड़े थे। रहीम दाद ने खुद को संभाला, हिम्मत से काम लिया, आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाया, स्विच टटोला और छत पर लगा हुआ बल्ब रोशन कर दिया। डब्बे में रोशनी फैल गई। रहीम दाद दम बखुद रह गया। हैरत से आंखें फाड़ कर देखा। जमालदीन एक नशिस्त का सहारा लिए उसके सामने खड़ा था। रहीम दाद ने पहली ही नज़र में उसे पहचान लिया। उसका लिबास मैला कुचैला और पोसीदा था। पगड़ी गले में पड़ी थी। सर के बाल बिखरे हुए थे और खाक धूल से अटे थे। हजामत बढ़ी हुई थी। चेहरा सता हुआ था और मुटियाला नज़र आ रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूरते रहे। जमालदीन को देखकर रहीम दाद सख्त सरासीमा हो गया था। उसका खदशा बेजा भी ना था। जमालदीन उसका बचपन का साथी था, लंगूटिया यार था। दोनों एक ही गांव में पैदा हुए थे और एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। जवान होकर भी उनकी यारी दोस्ती कायम रही। वो हर वक्त साथ साथ रहते, एक दूसरे की हर तरह मदद भी करते। ज़मीन की वटबंदी पर जब रहीम दाद का सैफुल्ला और उसके भाइयों के साथ मुसल्ला तसादुम हुआ तो ये जमालदीन ही था जिसने कुल्हाड़ी संभाल कर रहीम दाद का साथ दिया था, जमकर मुकाबला किया था। ज़ख्मी हुआ था और रहीम दाद के साथ ही जेल भी गया था। बाद में वो ज़मानत पर रिहा हो गया और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में बरी भी हो गया था। रहीम दाद को सज़ा हो गई। वो जेल ही में रहा। अब एक तवील मुद्दत के बाद वो आमने सामने खड़े थे। रहीम दाद ने टोह लगाने की कोशिश की कि जमालदीन ने उसे पहचान तो नहीं लिया। उसने अजनबियत का इजहार करते हुए पूछा, कौन है तू? जमालदीन ने कोई जवाब ना दिया। नज़रें उठाए रहीम दाद की जानिब टिकटिकी बांधे देखता रहा। रहीम दाद ने खबरदार करने के अंदाज में कहा, तुझे पता नहीं ये सेकंड क्लास है, इसका किराया बहुत ज़्यादा अदा करना होगा। उसने लहजे में नरमी पैदा की, अगले स्टेशन पर उतर जाना। मैंने जहाँ उतरना होगा अपनी मर्जी से उतरूँगा। जमालदीन ने तल्ख लहजे में कहा, तू मुझे रोकने वाला कौन? तू कोई टिकट बाबू लगा है? जैसे तू मुसाफिर वैसे मैं। रहीम दाद ने उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि वो उसे पहचान नहीं सका था, मगर वो ये भी ना चाहता था कि वो मौजूद रहे और ख़तरा बनकर उसके सर पर मुसलसल मंडलाता रहे। इस दफ़ा उसने धमकी से काम लिया, तुझे उतरना पड़ेगा, तू इस डब्बे में नहीं सफ़र कर सकता, मैं जंजीर खींचकर ट्रेन को रुकवा लूँगा। उसने जंजीर की तरफ हाथ बढ़ाया। जमालदीन ने झट धोती के डब से चाकू निकाला और उसे खोलकर ज़ोर से चीखा, ठहर जा। रहीम दाद खुला हुआ चाकू देखकर खौफज़दा हो गया। रहीम दाद ने सहमी हुई नज़रों से जमालदीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सुर्खी झलक रही थी, चेहरे पर वहशत तारी थी। वो हाथ में चाकू दबाए डरावना और खौफनाक नज़र आ रहा था। रहीम दाद संभला भी ना था कि जमालदीन उछलकर तेज़ी से उस पर झपटा। उसने चाकू से वार किया। रहीम दाद छपाक से एक तरफ हट गया। जमालदीन अपने ही हमले के ज़ोर में लड़खड़ा कर आगे निकल गया। चाकू का फल दरवाजे से टकरा कर लकड़ी में उतर गया।
जमाल दीन लकड़ी में फंसे हुए चाकू को झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगा। रहीम दाद इस असना में संभल चुका था। वो पलटा और झपटकर पुश्त की जानिब से जमाल दीन को दोनों हाथों में दबोच लिया। जमाल दीन घबरा गया। चाकू पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो मुड़ा और रहीम दाद के हाथों के शिकंजे से निकलने के लिए ज़ोर आजमाई करने लगा। देखने में वो दुबला पतला था, मगर हाथ पैरों में कस बल था। रहीम दाद के लिए उसे काबू में रखना आसान ना रहा। उसने भी पूरी कुव्वत सर्फ कर दी। देर तक कशमकश जारी रही। आखिर जमाल दीन उसकी पकड़ से ख़ुद को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया, मगर रहीम दाद ने इससे कबल के जमाल दीन संभले निहायत चाबक दस्ती से चाकू के दस्ते को थाम लिया। ज़ोर लगाकर उसे खींचा। चाकू अब उसके हाथ में था। जमाल दीन झपटने के लिए पलटा तो रहीम दाद चाकू हाथ में थामे खड़ा था। दोनों हाँप रहे थे, लेकिन जमाल दीन अब कमज़ोर पड़ चुका था। वो निहत्ता था और रहीम दाद के हाथ में खुला हुआ चाकू था। वो आहिस्ता आहिस्ता हाँपता रहा और कहर आलूद नज़रों से रहीम को घूर रहा था। तू डकैती के इरादे से आया था? रहीम दाद ने पूछा। नहीं, जमाल दीन ने तीखे लहजे में कहा। मैंने चोरी डकैती कभी नहीं की। मैं ऐसा काम नहीं करता। किसी का खून करके भागा है? रहीम दाद ने सवाल किया। जमाल दीन के चेहरे पर छाई हुई झुंझलाहट गायब हो गई। आंखों से घबराहट झलकने लगी। खामोश खड़ा रहा। इस दफ़ा रहीम दाद ने टपट कर कहा, साफ साफ बता। उसने एक बार फिर धमकी दी, वरना मैं जंजीर खींचकर गड्डी रोक लूँगा। तुझे फरार होने भी नहीं दूँगा। गिरफ्तार करा दूँगा। उसने जमाल दीन को खाइफ करने की गर्ज से जंजीर की जानिब हाथ बढ़ाया। जंजीर ना खींच। उसके लहजे में आजिज़ी थी। मैं तुझे सब कुछ बता दूँगा। ठीक है, तू उधर बैठ जा। रहीम दाद ने हाथ के इशारे से सामने की नशिस्त की तरफ इशारा किया। तुझसे आराम से गलबात होगी। जमाल दीन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और रहीम दाद की हिदायत के मुताबिक खामोशी से बैठ गया। रहीम दाद भी अपनी नशिस्त पर पहुंचा। टांगें समेट कर ऊपर कीं और तकिए से कमर टिकाकर इत्मीनान से बैठ गया। चाकू अभी तक उसके हाथ में दबा था। रहीम दाद ने जमाल दीन की जानिब देखा और लहजे में भारी भरकमपन पैदा करते हुए पूछा, हाँ, अब बता तू क्या वारदात करके आया है? क्या करेगा जानकर? जमाल दीन ने बुझे हुए लहजे में कहा, मैंने कोई वारदात की भी है तो तुझे इससे क्या लेना? उसकी आवाज़ का तीखापन पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब उसमें इल्तिजा का पहलू नुमायां था। तू परेशान ना हो, मैंने यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना। अगले स्टेशन पर उतर जाऊँगा। तुझे कहाँ जाना है? रहीम दाद ने कुरेद कर पूछा। मुझे खुद पता नहीं कहाँ जाना है, उसने आहिस्ता से कहा। कहीं भी चला जाऊँगा। रहीम दाद चाहता भी यही था कि जमाल दीन जल्द से जल्द डब्बे से बाहर चला जाए। वो बलाए नागहानी बनकर नाजिल हुआ था और उसके लिए मुसलसल परेशानी का सबब बना हुआ था। रात का पिछला पहर था। बार बार नींद का गलबा होता। रहीम दाद की आंखें बंद हो जातीं। चाकू पर गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती। चाकू उसके लिए मददगार होने के साथ साथ ख़तरे का बाइस भी था। अगर जमाल दीन दोबारा उसे हासिल करने में कामयाब हो जाता तो उसे कत्ल करने से ना चूकता। उसकी नीयत ऐसी ही मालूम होती थी। रहीम दाद ने सोचा चाकू तकिए के नीचे रख कर सो जाए, मगर ख़तरा फिर भी मौजूद था। जमाल दीन नींद की गफलत से फ़ायदा उठा सकता था। आखिर उसने चाकू से छुटकारा हासिल करना चाहा। साथ ही जमाल दीन पर एहसान भी जताया। खंकार कर गला साफ किया। जमाल दीन की जानिब मुतवज्जे हुआ। तू आराम से सीट पर लेट जा, मैंने तुझे तंग करके क्या लेना? उसने चाकू सामने कर दिया। तू इससे डर रहा है,
तो मैं इसे फेंके देता हूँ। उसने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर चाकू एक घनी झाड़ी की तरफ उछाल दिया। जमालदीन पर रहीम दाद के इस इक़दाम का खातिर ख़्वाह असर हुआ। उसने नरम लहजे में कहा, तू मुझे बुरा बंदा नहीं लगता। वो माजरत करने लगा, मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत बुरा किया, मुझे तुझ पर हमला नहीं करना चाहिए था। वो गिड़गिड़ाने लगा, तू इजाज़त दे तो मैं यहीं बैठा रहूं, सुबह होते चला जाऊंगा। तूने तो अगले स्टेशन पर उतरने को कहा था। रहीम दाद ने उसे चौकन्ना होकर देखा। किसी दूसरे डब्बे में जाकर बैठ जा। चला तो जाऊं पर उधर खतरा है, कोई मुझे पहचान लेगा तो गिरफ्तार करा देगा। तेरा डब्बा खाली था तभी तो इसमें आ गया। जमालदीन ने ठहर ठहर कर बताया, पैदल भी अब चलने की हिम्मत नहीं, कल रात में हजरी में था, तब से बराबर पैदल चल रहा हूँ, रोटी शोटी भी नहीं खाई। खून किया है किसी का? रहीम दाद ने नरमी से पूछा। मुझे साफ साफ बता दे, शायद मैं तेरी कुछ मदद ही कर सकूं। हाँ जी, मैंने खून ही किया है, जमालदीन ने दबी ज़बान से कहा। किसका खून किया? रहीम दाद ने दिलचस्पी का इजहार किया। मैं जी झंग में सैयदजादों के पास लगा हुआ था, घरवाली भी मेरे साथ थी, उसका नाम बिल्लो था। मैं उसे अकालगढ़ से ब्याह कर लाया था। उसके साथ पहले से मेरी यारी भी रह चुकी थी, पर उसने मेरे साथ धोखा किया। मैं ज़मींदार के काम से शहर जाता तो कई कई रोज़ उधर रहता। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता रहा। मेरे पीछे वो छुप छुप कर बारी से मिलती, वो भी सैयदजादों का नौकर था। एक बार जब मैं कई रोज़ बाद शहर से लौटा तो बिल्लो गायब थी। बारी के साथ भाग गई थी? रहीम दाद ने क़ियास आराई की। हाँ जी, वो उसके साथ भाग गई थी। जमालदीन ने एतराफ़ किया। मैंने बहुत तलाश किया पर कोई पता ना चला। ये कई महीने उधर की गल है। पिछले दिनों मुझे एक लारी ड्राइवर ने बताया, उसने बारी को हजरी में देखा था, बिल्लो भी उसके साथ ही थी। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, फ़ौरन हिजरी पहुंचा, पता चला कि ड्राइवर ने ठीक ही बताया था। तू बिल्लो को वापस लेने थाने नहीं गया? नहीं जी, उसे वापस लेकर क्या करता, वो मेरे काम की कहाँ रही थी, उसने रहीम दाद से तीखे लहजे में कहा। ऐसा था तो हिजरी गया ही क्यों? रहीम दाद ने चराह करने के अंदाज में सवाल किया। गैरत भी कोई चीज़ होती है जी, मैं दोनों से अपनी बेइज्जती का बदला लेने गया था, जमालदीन ने किसी कदर जोश से कहा। आधी रात तक मैं हिजरी के नज़दीक एक झंगर में छुपा रहा। जब हर तरफ सन्नाटा छा गया तो मैं पिंड में दाखिल हुआ, बारी के घर पर पहुंचा, दरवाजे पर खड़े होकर हाँक लगाई। वो आंखें मलता हुआ बाहर आया। मैंने देखते ही उस पर हमला किया, पूरा चाकू उसके पेट में उतार दिया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने दूसरा वार किया तो उसकी सारी अंतड़ियाँ पेट से निकलकर बाहर आ गईं। बिल्लो का क्या बना? रहीम दाद ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा। बारी ने ज़ख्मी होने के बाद शोर मचाया तो वो भी बाहर आ गई। मैंने उसे बालों से पकड़ लिया। उसने बहुत मिन्नत की पर मैंने उसे नहीं छोड़ा, ज़मीन पर गिराकर उसका गला काट डाला। उसने रहीम दाद की जानिब देखा। उसी चाकू से दोनों का खून कर दिया जो तूने खिड़की से बाहर फेंक दिया। शोर शराबे से पिंड में जाग हो गई होगी। हाँ जी, बिल्कुल हो गई थी, जमालदीन ने रहीम दाद को बताया। कई बंदों ने तो मुझे पकड़ने की भी कोशिश की, दूर तक मेरा पीछा किया, पर मैं किसी ना किसी तरह निकल भागा, उनके हाथ ना लगा। तूने उधर ही के किसी स्टेशन से ट्रेन क्यों ना पकड़ी? रहीम दाद ने हैरत का इजहार करते हुए इस्तफसार किया। यहाँ तक पैदल क्यों आया? उधर से ट्रेन पकड़ना खतरनाक था,
जमालदीन ने जवाब दिया। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने आसपास के स्टेशनों की निगरानी शुरू कर दी होगी। मैनू पता है पुलिस हमेशा ऐसा ही करती है। तू बहुत होशियार बंदा लगता है, रहीम दाद ने मुस्कुरा कर कहा। हौसले वाला भी है, साफ बचकर निकल आया। हाँ जी, छुपता लुकता किसी तरह इधर पहुंच ही गया। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। जमालदीन ने रहीम दाद को यकीन दिलाया। मैंने ज़रा भी झूठ नहीं बोला, तुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया। जमालदीन अब मुतमईन नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर छाई हुई वहशत और परेशानी मिटती जा रही थी। आंखों की सुर्खी भी कम हो गई थी। उसने टांगें फैलाईं और खिड़की से टेक लगाकर इत्मीनान से बैठ गया। रहीम दाद ने तसल्ली देने के अंदाज में कहा, अब तू सो जा, बहुत थका हुआ है, तुझे आराम की ज़रूरत है। जमालदीन खामोश बैठा रहा। रहीम दाद ने कमीज़ उतार कर खूंटी पर टांगी, सूटकेस खोल कर धोती निकाली और शलवार उतार कर धोती बांधने लगा। जमालदीन की आंखें यकायक चमकने लगीं। उनमें हैरानी थी, तजस्सुस था। वो नज़रें उठाए रहीम दाद की बुरहना कमर की जानिब गौर से देख रहा था। रहीम दाद के चेहरे का रुख दूसरी जानिब था। उसने मुड़कर जमालदीन की तरफ देखा भी नहीं। धोती बांधकर उसने शलवार भी खूंटी पर लटका दी। मगर जब वो पलटा तो जमालदीन ने झिझकते हुए कहा, लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है, आवाज़ भी कुछ पहचानी पहचानी लगती है। रहीम दाद बहुत सटपटाया। उसका चेहरा फ़क हो गया, मगर उसने फ़ौरन खुद को संभाला। लहजे में बेनियाजी पैदा करते हुए बोला, देखा होगा, पर मैंने तो तुझे आज से पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो ये भी पता नहीं तेरा नाम क्या है। मेरा नाम जमालदीन है। उसकी आंखों से तजस्सुस बदस्तूर अयां था। तू कभी अहमद कोट में तो नहीं रहा? पहले मैं भी उधर ही होता था। मैंने तो अहमद कोट का नाम ही पहली बार सुना है। रहीम दाद ने जमालदीन से नजरें ना मिलाईं, बेजारी से बोला, बेकार बातें करके अपना मगज़ ख़राब ना कर, अब तू सो जा। रहीम दाद अब उसके सामने मौजूद रहना न चाहता था, रोशनी भी न चाहता था। वो उठकर खड़ा हो गया, खूंटी पर से कमीज उतार कर पहनी और हाथ बढ़ाकर स्विच दबा दिया। छत में लगा हुआ रोशन बल्ब बुझ गया। डब्बे में अंधेरा फैल गया। रहीम दाद ने अपनी नशिस्त की जानिब बढ़ते हुए सफाई पेश की। मैंने बत्ती इसलिए बुझा दी कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और कोई सेकंड क्लास का मुसाफिर हुआ तो बत्ती जलते देखकर अंदर आने की कोशिश करेगा, दरवाज़ा खटखटाएगा। अंधेरा हुआ तो समझेगा अंदर के सारे मुसाफिर सो रहे हैं। रात को सेकंड क्लास के सोते हुए मुसाफिरों को जगाया नहीं जाता। सेकंड क्लास में सफ़र करने का एक ये भी फ़ायदा है। रहीम दाद अपनी नशिस्त पर बिछा हुआ बिस्तर दुरुस्त करने लगा। तकिया अपनी जगह रखा, जमालदीन की जानिब देखा। अब तू बैठा क्यों है, सो जा। जमालदीन खामोश रहा। टांगें समेट कर ऊपर की, एक हाथ सर के नीचे रखा और इत्मीनान से लेट गया। रहीम दाद भी बिस्तर पर लेट गया। रेलगाड़ी हिचकोले खाती, फर्राटे भरती तेज़ी से दौड़ती रही। वक्त गुजरता रहा। रात और ढल गई। रहीम दाद ने करवट बदली और जमालदीन की जानिब से मुंह फेर कर लेट गया। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। वो सोना नहीं चाहता था, मगर गनूदगी इस कदर बढ़ी कि आंख लग गई। यकायक रहीम दाद को खटका मालूम हुआ। आंख खुल गई। उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। कोई उस पर झुका हुआ रुक रुक कर सांस ले रहा था। वो चंद लम्हे तो सहमा हुआ दम बखुद पड़ा रहा। फिर उसने करवट बदली और उठकर बैठ गया।
اس نے دیکھا دھندلی دھندلی روشنی میں جمال دین اس کے قریب کھڑا ہے۔ اس وقت وہ بہت پراسرار نظر آ رہا تھا۔ تو یہاں کھڑا کیا کر رہا تھا؟ رحیم داد نے ٹپٹ کر پوچھا۔ جمال دین نے اس کے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا۔ تو رحیمہ ہے نا؟ اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ کون رحیمہ؟ کیسا رحیمہ؟ رحیم داد نے جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ میں کسی رحیمہ شہیمہ کو نہیں جانتا۔ مگر جمال دین اس کی برہمی سے ذرا بھی مرعوب نہ ہوا، ڈھیٹ بنا کھڑا رہا، مسکرا کر بولا، مجھے پتا ہے تو رحیمہ ہے، مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ تو رحیمہ ہی ہے۔ اس کا لہجہ نرم اور شگفتہ ہو گیا۔ رحیمے، تو مجھے صاف صاف بتا دے، میں تیرا پرانا یار ہوں، کسی کو تیرے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، تو مجھ پر بھروسہ رکھ۔ وہ نہایت اطمینان سے سنبھل سنبھل کر بولتا رہا۔ رحیم داد سخت حواس باختہ ہوا۔ اس کی حالت دگرگوں ہو گئی، مگر اس نے حوصلے سے کام لیا۔ تیرا مغز تو نہیں پھر گیا؟ اس نے جمال دین کو ڈانٹا، ہاتھ بڑھا کر بجلی کا سوئچ دبایا، ڈبے میں روشنی پھیل گئی۔ رحیم داد نے تیوری پر بل ڈال کر غصے سے جمال دین کو گھورا۔ ناراض نہ ہو۔ جمال دین گڑ گڑانے لگا۔ سچ بتا، تو کبھی احمد کوٹ میں تو نہیں رہا؟ بکواس نہ کر، جا اپنی جگہ جا کر بیٹھ۔ رحیم داد نے اونچی آواز سے کہا۔ تو رحیمہ نہیں ہے؟ جمال دین اپنی جگہ پر جمع کھڑا رہا۔ نہیں۔ رحیم داد نے غصے سے آنکھیں نکال کر کہا۔ بیکار کی بکواس نہ کر، یہاں سے ٹر جا۔ جمال دین پلٹا اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ٹک ٹکی باندھے رحیم داد کے چہرے کو تکتا رہا۔ پھر اس نے پوچھا، اگر تو رحیمہ نہیں تو پھر کون ہے؟ میں چودھری نور الہی ہوں، رحیم داد نے بتایا۔ پہلے گورداس پور کے موزے نصیر پور میں ہوتا تھا، فسادات میں لٹ پٹ کر پاکستان آ گیا۔ اب کوٹلہ ہرکشن میں ہوتا ہوں، ادھر میری زمینداری ہے، متروکہ اراضی سے کلیم کی بنا پر الاٹ ہوئی ہے۔ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، میں نے ہی غلط اندازہ لگایا۔ اس کے رویے سے تذبذب آشکارا تھا۔ یہ بتا، تو میرے سرہانے کھڑا کیا کر رہا تھا؟ وہ جی ایسا ہے، نورا نے ایک گل بتائی تھی۔ کون نورا؟ رحیم داد نے مداخلت کی۔ وہ رحیمہ کی گھر والی ہوتی تھی، جمال دین نے بتایا۔ جب رحیمہ جیل میں تھا تو میری اس سے یاری ہو گئی، میں اسے اکال گڑھ لے گیا۔ تو نے کس کس سے یاری لگائی؟ ایسا تو گھبرو بھی نظر نہیں آتا کہ ہر مٹیار ہر زنانی تجھ پر مر مٹے۔ رحیم داد نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ان دنوں تو نے مجھے نہیں دیکھا، جمال دین نے سادگی سے کہا۔ تب میں بہت تکڑا اور زور آور ہوتا تھا۔ تو نے بلو کی طرح نورا کو بھی قتل کر دیا ہوگا؟ نہیں جی، وہ تو مجھ سے لڑ جھگڑ کر چک بیدی چلی گئی تھی، جمال دین نے بتایا۔ بلو سے میری پہلے سے یاری چل رہی تھی، میں نے اس سے بیاہ کیا اور جھنگ کی طرف ایک یار بیلی کے ساتھ چلا گیا۔ آگے تجھے پتہ ہے کیا ہوا؟ رحیمے کا کیا بنا؟ رحیم داد نے انجان بن کر پوچھا۔ وہ جیل سے فرار ہو گیا، جمال دین نے بتایا، پر سیف اللہ کے بھائیوں نے اسے نہر باری دواب کے ٹبوں پر قتل کر دیا۔ جب رحیمہ قتل ہو گیا تو میں یا اور کوئی کیسے رحیمہ ہو سکتا ہے؟ رحیم داد ہنسنے لگا۔ تو بھی عجب بندہ ہے، تیرے دماغ میں کچھ گڑبڑ تو نہیں؟ نہیں جی، ایسی کوئی گل نہیں، جمال دین نے صفائی پیش کی۔ پتہ تو یہی چلا تھا کہ رحیمہ قتل کر دیا گیا، احمد کوٹ میں اس کی لاش لا کر دفن کی گئی، ادھر اس کی قبر بھی ہے، پر نورا کہتی تھی رحیمہ مرا نہیں، زندہ ہے۔
اس کو کیسے پتہ چلا رحیمہ زندہ ہے؟ وہ ایسا ہوا جی، جب میں نورا کے ساتھ اکال گڑھ میں تھا تو ایک رات نورا نے مجھے جگا کر بتایا کہ اس نے رحیمے کو گھر میں دیکھا ہے۔ میں نے تلاش کیا پر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ نظر کیسے آتا، وہ تو مر چکا تھا۔ پر صبح اٹھ کر میں نے اور نورا نے دیکھا، گھر کے اندر اور باہر گلی میں جگہ جگہ پیروں کے نشان صاف نظر آئے۔ کسی چور ڈکیت کے ہوں گے۔ میں نے بھی نورا سے یہی کہا تھا پر وہ نہ مانی، بار بار یہی کہتی تھی وہ رحیمہ ہی تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ نورا نے ایسے ہی کہا ہوگا۔ رحیم داد نے اس کے مغالطے کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ بتا، تو اندھیرے میں میرے نزدیک کھڑا کیا کر رہا تھا؟ وہی تو جی میں بتا رہا تھا، جمال الدین نے وضاحت کی۔ نورا اپنی بات پر اڑی رہی، کہتی تھی رات گھر میں رحیمہ ہی آیا تھا، میں اسے پہچان سکتی ہوں، برسوں اس کے ساتھ رہی ہوں، اس کے 3 بچوں کو پیدا کیا ہے، میں اس کی گھر والی ہوں، میں اسے جتنا جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا، میرے سوا اسے کوئی نہیں پہچان سکتا، اس کے بدن پر کئی ایسی نشانیاں ہیں جنہیں صرف میں جانتی ہوں۔ کہتی تھی سب سے بڑی پہچان اس کی کمر سے تھوڑا نیچے ایک لال لال پیسا برابر نشان ہے، وہ کیسے لگا، کب لگا، یہ مینوں پتا ہے۔ رحیم داد خوف سے دم بخود رہ گیا۔ واقعی اس کی کمر پر ایک گہرا سرخ نشان موجود تھا۔ اس نشان کے بارے میں اسے ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ کئی سال پہلے کا ذکر ہے۔ اس وقت رحیم داد کا پہلوٹی کا بیٹا کریم داد عرف کریمہ 6 مہینے کا تھا۔ ایک روز کھیتوں میں پانی دیتے ہوئے اس کا پیر پھسل کر آڑ میں چلا گیا۔ وہ دھڑام سے گرا، کمر میں زور کا جھٹکا آیا، ایسا شدید درد اٹھا کہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، کسی پہلو قرار نہ آتا، کروٹ بدلنے پر ٹیس اٹھتی۔ بہت علاج معالجہ کرایا مگر درد کم نہ ہوا۔ آخر گاؤں کی ایک بوڑھی عورت مائی شیدہ کے مشورے پر نورا ایک پیر کے پاس گئی۔ اس نے کمر پر باندھنے کے لیے تعویذ دیا مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اسی پیر نے ایک ٹوٹکا بتایا، 2 روپے نذرانے کے لیے اور تانبے کا 1 پیسہ دیا۔ کوئی دعا پڑھ کر اس پر دم کی، ہدایت کی کہ پیسے کو انگاروں پر رکھ کر گرم کیا جائے اور جب انگاروں ہی کی طرح سرخ پڑ جائے تو اس سے کمر کو داغا جائے۔ ماغ کی اندھیری رات تھی، مہاوٹوں کی سردی پڑ رہی تھی، آسمان پر کالے کالے بادل چھائے تھے۔ شام کو بارش بھی ہوئی تھی مگر اب بارش بند ہو چکی تھی، البتہ ہوا فراٹے بھرتی ہوئی چل رہی تھی۔ رحیم داد کی کمر کا درد کچھ اور شدید ہو گیا تھا۔ وہ چٹائی پر اوندھا لیٹا تھا، قریب ہی انگیٹھی رکھی تھی، اس میں سرخ سرخ انگارے دہک رہے تھے۔ نورا انگیٹھی کے ایک طرف اکڑوں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں چمٹا تھا، وہ گردن جھکائی انگیٹھی میں بھرے ہوئے انگاروں کو تک رہی تھی جن کے درمیان پیر کا دم کیا ہوا تانبے کا پیسہ رکھا تھا۔ وہ چمٹے سے بار بار پیسے کو الٹ پلٹ رہی تھی تاکہ وہ پوری طرح گرم ہو جائے۔ رحیم داد کے چہرے کا رخ نورا کی جانب تھا مگر وہ پوری توجہ سے انگاروں کو دیکھ رہی تھی جن کی گہری سرخ روشنی سے اس کے رخساروں پر شفق پھوٹ رہی تھی۔ رحیم داد کو اس روپ میں وہ اس قدر خوبصورت اور دلربا نظر آ رہی تھی کہ کمر کی تکلیف کے باوجود وہ ٹک ٹکی باندھے اس کے شعلہ گوں چہرے کو تک رہا تھا۔ نورا نے دہکتے انگاروں کو دیکھتے دیکھتے ایک بار گردن کو خم دے کر رحیم داد کی طرف دیکھا، شوخی سے مسکرائی۔ رحیم داد کی کمر پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرا، پلٹ کر انگاروں کو دیکھا، تانبے کا پیسہ اب انگاروں ہی کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں دبے ہوئے چمٹے سے دہکتا ہوا پیسہ اٹھایا،
रहीम दाद ने घबरा कर अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया, आंखें बंद कर लीं और दांत सख्ती से भींच लिए। नूरा ने चिमटे में दबा हुआ सुर्ख सुर्ख पैसा रहीम दाद की बुरहना कमर पर रखा और पीर की हिदायत के मुताबिक ज़ोर से दबा दिया। रहीम दाद तकलीफ़ की शिद्दत से तड़प उठा, बिलबिलाकर इस पूरी तरह चीखा कि नूरा उसकी पीठ पर सर रख कर बेइख्तियार रोने लगी। दागने से कमर की खाल जलकर स्याह पड़ गई थी। रहीम दाद सारी रात तड़पता रहा, तकलीफ़ से कराहता रहा, हाय हाय करता रहा। नूरा भी रात भर जागती रही, बेकरार होकर आंसू बहाती रही। ज़ख्म ऐसा गहरा आया कि महीनों दवा दारू करना पड़ा। नूरा रातों को उठ उठ कर उसकी मरहम पट्टी करती थी, घंटों उसके सरहाने बैठती दिल जोई करती रहती थी। ज़ख्म पकने सड़ने के बाद ठीक तो हो गया, मगर उसका निशान ना मिटा, अब तक बाकी था और कमर से ज़रा नीचे दाईं तरफ साफ नज़र आता था। नूरा उसे देखकर एक मुद्दत तक इज़हारे पशेमानी करती रही, बार बार खुद को बुरा भला कहती। रहीम दाद समझाता तो रोने लगती। रहीम दाद यादों की पगडंडियों पर भटकता रहा। जमालदीन उसके ख्यालात और एहसासात से बेनियाज ठहर ठहर कर बोलता रहा। मुझे जब ये शुबा हुआ कि तू रहीमा है तो मैंने ये निशान तेरी कमर पर देखने की कोशिश की। रहीम दाद ने चौंक कर जमाल की जानिब देखा। तू अंधेरे में खड़ा मेरी कमर पर वही निशान देख रहा था? उसके लहजे में झुंझुलाहट थी। हुन जी, सच्ची गल बात तो यही है। जमालदीन ने साफ गोई से काम लिया। जब तू कपड़े बदल रहा था तो मैंने उसकी एक झलक देखी भी थी। तू मखौल तो नहीं कर रहा? रहीम दाद ने टालने की कोशिश की। मैंने मखौल करके तुझसे क्या लेना? उसने निहायत मासूमियत से जवाब दिया। सच पूछ तो तेरी आंखें, तेरी नाक, तेरी आवाज़ सब रहीमे की तरह हैं। उसने टटोलने वाली नज़रों से रहीम दाद के चेहरे को देखा। तूने फिर वही बकवास शुरू कर दी। रहीम दाद ने एक बार फिर उसे डांटा। तू घास तो नहीं खा गया? नाराज ना हो, जमालदीन ने नरमी से कहा। अगर तू रहीमा नहीं है तो कमीज़ हटाकर मुझे अपनी कमर दिखा दे, मेरा शक जाता रहेगा। रहीम दाद गुस्से से तड़प कर उठा और झपट कर जमालदीन के मुंह पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा कर नशिस्त से नीचे गिर गया। रहीम दाद तिल मिला कर धाड़ा। मैं अभी ट्रेन रुकवा कर तुझे गिरफ्तार करवाता हूँ। तू खूनी है, एक नंबर कमीना है, मैंने तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ना। वो चीखता चिल्लाता आगे बढ़ा और जंजीर का दस्ता पकड़ लिया। जमालदीन फौरन उठकर खड़ा हो गया, दुहाई देता हुआ रहीम दाद की जानिब बढ़ा। ऐसा ना कर, मेरी गल तो सुन। उसने झपाक से रहीम दाद का हाथ पकड़ लिया। रहीम दाद जंजीर खींचना चाहता भी ना था। जमालदीन को गिरफ्तार कराने की कोशिश में वो खुद भी गिरफ्तार हो जाता। रहीम दाद ने थोड़ी सी कशमकश के बाद जंजीर का दस्ता छोड़ दिया। वो चंद लम्हे खामोश बैठा, आहिस्ता आहिस्ता हाँफता रहा। फिर वो खड़ा हो गया, आगे बढ़ा। जमालदीन ने टोका। तू किधर चला? रहीम दाद ने बढ़कर गुसल खाने का दरवाज़ा खोला। आंखें निकाल कर जमालदीन को देखा, खौफज़दा करने की गर्ज से धमकी दी। अंदर भी ट्रेन रोकने की जंजीर है? वो गुसल खाने में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर उसने जंजीर ना खींची। ऐसा इरादा भी ना था। उसने गर्दन झुकाकर कमर के सुर्ख निशान को देखने की कोशिश की। वो पुश्त की जानिब नशेद ऐसा दबा हुआ था कि मुड़ मुड़ कर देखने के बावजूद नज़र न आया। उसने उंगलियों से कमर के निचले हिस्से की खाल आहिस्ता आहिस्ता टटोली। एक जगह गोल दायरे में खाल नाहमवार और कुछ खुरदरी थी। यही ज़ख्म का निशान था। वो सख्त परेशान हुआ।
جمال الدین اس کے لیے اب سنگین خطرے کا باعث بن گیا تھا۔ اس کے بارے میں اسے پہلے ہی شبہ تھا۔ کمر کے نشان سے وہ اسے پہچان بھی سکتا تھا۔ وہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کس طرح جمال الدین سے چھٹکارا حاصل کرے۔ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا، غسل خانے سے باہر نکلا۔ اسے یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ جمال الدین اپنی نشست پر موجود نہ تھا۔ رحیم داد نے حیران و پریشان ہو کر اسے ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ اس نے اپنا سوٹ کیس دیکھا، وہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ رحیم داد حیرت میں ڈوبا ہوا اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا کہ جمال الدین کہاں غائب ہو گیا۔ اس کی نظر دروازے کے اوپر گئی، دیکھا چٹخنی کھلی ہے۔ وہ گوں مگوں کے عالم میں بیٹھ جمال الدین کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ریل گاڑی کی رفتار سست پڑ گئی۔ ذرا ہی دیر بعد گاڑی ٹھہر گئی۔ رحیم داد نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر دیکھا۔ ریل گاڑی ایک ویرانے میں کھڑی تھی۔ پٹری کے دونوں طرف جنگل جھاڑیاں تھیں، کہیں کہیں اکا دکا درخت تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ مشرقی افق پر ہلکا ہلکا اجالا پھوٹ رہا تھا۔ رات کا چل چلاؤ تھا۔ صبح کاذب اندھیرے سے جھانک رہی تھی۔ رحیم داد نے بولنے اور باتیں کرنے کی ملی جلی آوازیں سنی۔ دیکھا کئی مسافر اپنے اپنے ڈبوں سے اترے اور ٹرین کے اس سرے کی طرف چلے جدھر گارڈ کا ڈبہ تھا۔ رحیم داد کو تجسس پیدا ہوا۔ وہ بھی دروازہ کھول کر باہر آیا اور دوسرے مسافروں کے ساتھ چلنے لگا۔ ریل گاڑی سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر ہلکی ہلکی سرمئی روشنی میں گارڈ، ٹکٹ چیکر اور ریلوے کے دوسرے ملازم چند مسافروں کے ساتھ ہجوم کی صورت میں کھڑے نظر آئے۔ رحیم داد قریب پہنچا، دیکھا لوہے کی پٹڑیوں کی دونوں جانب انسانی جسم کے کٹے پھٹے حصے گوشت کے لوتھڑوں کی شکل میں بکھرے ہوئے تھے۔ ہر طرف تازہ تازہ خون پھیلا تھا۔ ریل گاڑی کے پہیوں سے کٹ کر کوئی مسافر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ غائب تھا، صرف گردن اور سینے کا کچھ حصہ باقی تھا۔ یہ جمال الدین تھا جو خاک و خون میں لتھڑا ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کب کا دم توڑ چکا تھا۔ اس کی بے نور آنکھیں رحیم داد کے چہرے کو تک رہی تھیں۔ رحیم داد یہ دل خراش منظر دیکھ کر لرز گیا۔ وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا بھی اس کے لیے خطرناک تھا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور سر جھکا کر تھکے تھکے قدموں سے واپس ہوا۔ اپنے ڈبے کے پاس پہنچا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ باب نمبر 45 اگلی ویڈیو میں سنیں۔